Good morning, students. This is another video of chapter 5 of class 10 geography, that is minerals and energy resources. Already in earlier videos we have discussed about the minerals and its types. Let's discuss what is the importance of minerals in our lives. Why minerals are so important for us. So if we talk about the importance of the minerals, so we will find that they are the indispensable part of our lives. They are used in buildings, ships, railways, roads, machines, cars, buses, trains, aeroplanes, everywhere. Even our food contains minerals. They are used for livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites. अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, हम अपने घरों को बहुत सारे लाइट से डेकोरेट करते हैं. उन लाइट्स में भी मिनरल्स का इस्तेमाल होता है. लिवलीहुड में कैसे, जितने फार्मर्स हैं, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है, उनमें जो टूल्स मशीन्स इस्तेमाल हो रहा है वो कहीं ना कहीं मिनरल से ही तो बना हुआ है. मिनरल्स हेल्प इन आवर बॉडी टू यूटिलाइज द फूड स्टफ्स. जो भी हम खाना खाते हैं, वाट एवर द फूड दैट वी टेक, for the proper utilization of such food stuffs there is requirement of minerals. So we can understand from livelihood to sustaining our lives, minerals are very very important to us. So I think it is very clear to you all that why minerals are so important to us. When minerals are of so much importance, then it is very important to understand the definition of minerals. So what is a mineral? A mineral is a homogeneous natural occurring substance with a definite internal structure. Once again I am repeating it. A mineral is a homogeneous naturally occurring substance with a definite internal structure. Minerals can be very hard like diamonds and also can be very soft like talc. From where we get these minerals? Again, we get these minerals from the ore, and these ores are found beneath the underground. And rocks can be called as an aggregate of different minerals. We find minerals from rocks. Ore, it is very important to define ore also. So now we'll try to discuss what is an ore. Ore is an aggregate of minerals in which the metal content is of sufficient economic value. ore जो है एक ऐसा मिनरल्स का एग्रीगेट है जिसमें हमको मेटल कंटेंट तो मिलता ही है, बट इट शुड बी ऑफ सफिशिएंट इकोनॉमिक वैल्यू. We find metal from these ores and there should be sufficient economic value. कहने का मतलब है द कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इन सच अमाउंट दैट अगर उसको हम इकोनॉमिकली वायबल मानते हुए अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए. क्योंकि किसी भी मिनरल्स को या मिनरल्स जो हमारे हैं वो तो रिसोर्स ही है, किसी भी रिसोर्स की इकोनॉमिक वैलिडिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि हमें सिर्फ क्वांटिटी के बारे में नहीं सोचना है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी के बारे में भी सोचना है. इट मीन्स बिफोर यूटिलाइजिंग एनी रिसोर्स वी हैव टू थिंक अबाउट द क्वांटिटेटिव एज वेल एज qualitative aspects of such resource that they are of sufficient economic value or not. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी मिनरल्स के रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन में. हम किसी भी मिनरल्स को इस्तेमाल करने से पहले, एक्सट्रैक्ट करने से पहले ये ज़रूर कंफर्म करेंगे कि जिस प्लेस से हम इसको एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं क्या वो इकोनॉमिकली वायबल है, क्या वो इकोनॉमिकली सफिशेंट वैल्यू का है. In earlier videos, I have discussed about the minerals and their classification. In short, we can revise. Minerals are mainly classified as metallic, non-metallic and energy minerals. Metallic, ferrous, non-ferrous and precious metals. Ferrous जिनमें आयरन कंटेंट होता है या जो आयरन
की तरह क्वालिटी को शो करते हैं, लाइक मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, एटीसी। नॉन फेरस कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। प्रीसियस मेटल्स में आपके गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह आ जाएंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स का एग्जांपल आपका माइका, साल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एक्सेट्रा। व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी मिनरल्स, we know that coal, petroleum, natural gas will be there. So classification is very easy to understand. आप इसको अपने घर पे अपनी कॉपी में क्लासीफाई करके प्रॉपरली अपनी क्लास वर्क कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, सो दैट इट विल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई मिनरल्स आर क्लासिफाइड इन सच अ वे. If a mineral is of metallic type, then when it will be heated, it will expand and it can be melted into various shapes or rolled into sets. Even they can be drawn into wires. They possess a shine or luster of their own. Already we have discussed, we have learned this in class 7 and 8. They have their own luster and shine. For example, iron, gold, silver, tin, zinc, lead, aluminum, etc. These are the metallic minerals. एंड दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, मतलब इनका जो हम इनको रिसाइकल करके रीयूज़ बार बार कर सकते हैं. बट इफ़ द मिनरल्स आर ऑफ नॉन मेटेलिक टाइप, देन दिस मिनरल्स आर एसोसिएटेड विथ सेडिमेंट्री रॉक्स. आपको मैं बता दूं कि अगर मिनरल्स जो नॉन मेटेलिक हैं, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स मेनली एसोसिएटेड होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ. सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ ज़्यादातर आपको नॉन मेटेलिक मिनरल्स का एसोसिएशन देखने को मिलेगा. तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, जो आपकी बुक्स में दिया हुआ भी है और एग्ज़ाम में आता भी है, वो है आपका कोल. कोल इज़ अ नॉन मेटेलिक मिनरल और ये कहाँ पाया जाता है? इन सेडिमेंट्री रॉक्स, इन टर्म्स ऑफ बेड्स एंड लेयर्स आप कह सकते हो. तो कोल का तो सीधा करेक्शन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ है. ये आपको याद रखना है, बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑल्सो. मेटेलिक मिनरल्स कैन बी अगेन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ferrous and non-ferrous minerals. You know that ferrous, it means having iron content. Non-ferrous, it means not having iron content. It is very easy. So today we'll focus on some other topics now. स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जो मिनरल्स है और मिनरल्स का डेफिनेशन, उनके वेरियस क्लासिफिकेशन को हमने देखा. बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन व्हाट फॉर्म्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स आर फाउंड. सो स्टूडेंट्स, में जो सबसे पहला नाम आएगा वो आपको आएगा लोड्स एंड विंस. ये आपको कंप्लीट करके रखना है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लोड्स एंड विंस. जो कंसंट्रेशन के हिसाब से जो हायर कंसंट्रेशन के ऑकरेंसेस को लोड्स बोलते हैं, बिकॉज हमको पता है कि जो हमारे मिनरल्स हैं वो क्रैक्स, क्रिविसेस, फॉल्ट्स, जॉइंट्स वगैरह में मिलते हैं. तो हायर कंसंट्रेशन को लोड्स बोलेंगे, लोअर कंसंट्रेशन को बोलेंगे विंस. ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका होमवर्क भी रहेगा. यू हैव टू डिफाइन दिस एंड राइट इन योर कॉपी ऑल्सो. एंड ऑल्सो minerals are found in lodes and winds, plus they are found in layers. Already I have told you right now that in sedimentary rocks in shape of beds or layers. Sedimentary rocks beds और layers से मिलेगा. इसमें आपको कौन सा मिलेगा? सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा coal. Apart from coal, you will find gypsum and sodium salt also. Gypsum will be there also. Gypsum and sodium salt. Even minerals are found in forms of alluvial deposits. Alluvial deposit का मतलब है जब रिवर्स अपने कोर्स के थ्रू बहुत सारे रॉक्स को जो क्या करती है, फ्रैगमेंट में तोड़ती रहती है. तो उससे भी क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं वो आपको एज ए एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं. इनको हम प्लेसर डिपॉजिट्स भी कहते हैं. इसको याद करना बहुत इजी है, बिकॉज दे आर डिपॉजिटेड बाय द डिपोजिशनल प्रोसेस ऑफ रिवर्स. बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स जो रिवर अब फ्लो करती है तो वो बहुत सारे रॉक्स पार्टिकल्स को लेकर आती है, उनको ब्रेक डाउन करती है, फ्रैगमेंट्स में तोड़ती है, जिससे मिनरल्स जो है वो आपको एज अ प्लेसर डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं. इवन दे आर फाउंड एज अ रेजिडुअल मास और वेदर्ड मटेरियल.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, बिकॉज ऐसा जो जो मिनरल हमको मिलता है वो है हमारा बॉक्साइट. बॉक्साइट इज़ फाउंड एज अ रेजिडुअल मास और वेदर्ड मटेरियल. होता क्या है, ड्यू टू इंटेंस हीट एंड ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स जैसे सनलाइट है, विंड है, वाटर है, इससे क्या होता है जो सरफेस है, जो रॉक है, वो एक्सपोज हो जाते हैं और जो वेदरिंग होती है, बिकॉज ऑफ दिस वेदरिंग जो टॉप का जो लेयर है वो वेदर्ड हो जाता है और जो हमारा मिनरल्स है वो हमें दिखता है या मिलता है. तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं रेजिडुअल मास, क्योंकि जो बचा हुआ जो मिनरल है वो हमें मिलता है बिकॉज ऑफ दिस वेदरिंग. तो इस ऐसे प्रोसेस से जो हमें मिनरल मिलता है वो हमारा है बॉक्साइट. इवन वी कैन फाइंड मिनरल्स फ्रॉम ओशियंस, कॉमन सॉल्ट, ब्रोमीन, मैग्नीशियम एंड देयर अदर मिनरल्स ऑल्सो, बट ये इतने ज़्यादा डिफ्यूज है बिकॉज ओशन इज़ टू लार्ज इन ऑन आर प्लांट देयर 71% ऑफ वाटर. सो इतने डिफ्यूज अमाउंट में है जिसका इकोनॉमिक वैलिडिटी बहुत कम है, बट we can get minerals from ocean also. So these were the topics that we have discussed today. In next video we'll discuss about the distribution of minerals and why there is uneven distribution of such minerals and why economic viability of a resource or a mineral depends on such factors, and we will discuss those factors. So thank you.